Everybody has understood all the three layers: epidermis, dermis, and hypodermis. Yes, sir. This is the structure of hair. Outer side it is cuticle, then cortex and medulla. Now glands, which we discussed last turn. Sudoriferous glands are also known as sweat glands. They secrete outward toward the surface of the body. They secrete outward and they have got a duct. That's why they are known as exocrine glands. They are located almost everywhere on the body surface. Exocrine glands, they are of three types: eccrine glands, in which these major sweat glands are eccrine glands; then sebaceous gland, which secrete oily waxy material, that is known as sebum; and third one is the apocrine sweat, and in that there is mammary gland or breast. The excretion of sweat is called diaphoresis. That's why diaphoresis से क्या होता है? Diaphoresis means when sweat comes on the surface of the body, it evaporates. When it evaporates, it causes cooling effect. तो जो जैसे जब कभी टेम्परेचर ज़्यादा होता था, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने में हम लोग के एलोपैथी में एक मिक्सचर दिया जाता था पहले। आजकल मिक्सचर बनने का ट्रेडिशन नहीं है। मिक्सचर जो केमिस्ट बना के देते थे, उस मिक्सचर को कहते थे डाइफोरेटिक मिक्सचर, यानी फीवर उतारने वाला मिक्सचर। डाइफोरेटिक, डाइफोरेटिक माने जब वो हम मिक्सचर पेशेंट पीता था तो क्या होता था? पसीना बहुत आता था, स्वेट बहुत सा निकलता था, और स्वेट निकलने से जब वो इवेपरेट होता था तो हाई टेम्परेचर लोअर हो जाता था, यानी फीवर ठीक होता था। तो डायफोरेसिस से क्या होता है? डायफोरेसिस से जो हमारा स्वेट है दैट इवेपरेट्स एंड गिव अस कूलिंग, cooling on the surface. So diaphoresis means evaporation of sweat which is secreted by the eccrine gland known as sudoriferous glands. So what are the sweat glands? Sweat gland produce sweat or perspiration. The process is known as perspiration. As sweat collect on the skin surface, it evaporates and creates a cooling effect, which I discussed just now. Sweat also rids the body of waste through the pores of the skin. So some waste is also excreted out along with the sweat from the pores of the skin. पोर्स कौन से होंगे? जो स्वेट ग्लैंड की डक्ट होती हैं, दे ओपन ऑन द स्किन सरफेस, एपिडर्मिस में ओपन होती हैं। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज diaphoresis. As it accumulates, sweat may become odorous. और sweat जब accumulate होता है, जब हम बॉडी कवरिंग्स बहुत लगी होती हैं, क्लोथिंग्स ज़्यादा होती हैं, तो वो क्या होता है? स्वेट जो होता है accumulate हो जाता है। बहुत से, जैसे आजकल आप लोग सिंथेटिक क्लोथिंग्स नहीं पहनना पसंद करते हैं, सिंथेटिक क्लोथिंग में पोर्स नहीं होते, तो वो स्वेट इवेपरेट नहीं होता, वो क्या होता है? अंदर सरफेस पे ही लगा रहता है। तो दैट बिकम्स ओडोरस, दैट मीन्स दैट स्मेल्स, एंड इन दैट स्मेल बैक्टीरिया में आल्सो ग्रो. So as bacteria may grow in that smell, that gives the bad smell. The average person loses approximately half liter of fluid through the sweating each day. That means whatever intake, water intake you do, whatever fluid intake you do, approximately you see from the whole body surface half liter fluid ये निकल जाता है by sweating or diaphoresis. Diaphoresis or sweating से you get the loss of fluid. Then what is the sebaceous gland? Sebaceous glands are the oil glands.
Sebaceous glands are all glands. Now you see, this is the hair follicle. Hair shaft है, ये हेयर शेफ्ट है जो स्किन की सरफेस से बाहर निकला हुआ है, और ये अंदर का हेयर फॉलिकल है, फॉलिकल जहाँ से रूट है, यानी जहाँ से अंदर ये डर्मिस से जहाँ पर कनेक्टेड है, दैट इज हेयर फॉलिकल। उसके बाहर की ये शीथ है, आउटर रूट शीथ, and then it is connected with the sebaceous. These are the sebaceous glands which is connected with this hair shaft, and then it gives its secretion through this pore. यहाँ पोर जो है यहाँ से चलता है। Sebaceous glands are aisle glands. They have tiny ducts that open into each hair follicle. ये जो है hair follicle में open होती हैं। Each duct है, these opens into the hair follicle. Each sebaceous gland secretes sebum. That's why that is known as sebaceous gland, sebum, which lubricates the hair and skin. ये जो सिक्रेशन होता है ये क्या करता है, हेयर को लुब्रिकेट करता है और स्किन को लुब्रिकेट करता है। द अमाउंट ऑफ सिक्रेशन वेरीज विद द एज, प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी। ये जो सिक्रेशन का अमाउंट डिपेंड करता है इन कंडीशंस पे, एज के हिसाब से, देन प्यूबर्टी के हिसाब से, और प्रेगनेंसी। इन कंडीशन में ज़्यादा हो जाता है, प्यूबर्टी के टाइम पे ज़्यादा हो जाता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा हो जाता है। और जब इन वेरीज विद द एज, जब ओल्ड एज होती है तो सिक्रेशंस कम हो जाते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है, और जब एडल्ट होते हैं यूजुअली मॉइस्ट स्किन रहती है बिकॉज ऑफ दिस ऑयल which is produced by the sebaceous gland. Now sudoriferous glands are sweat glands. दोनों glands में फर्क है, they are sweat glands, they are about 2 million are distributed over the surface of the body, 2 million तक, 2 मीटर स्क्वायर एरिया में 2 मिलियन हो जाती है। More numerous, ज़्यादा होती हैं on the palms of the hand, soles of the feet and forehead. तभी माथे पे पसीना बहुत आता है, इसीलिए कि वहाँ पे ज़्यादा है। हाथों में पसीना बहुत से सोल्स में आप जब आजकल आप जो होते हैं यूजुअली शॉक्स नहीं पहन पाते गर्मियों में, जाड़ों में तो पहन लेते हैं क्योंकि आजकल ज़्यादा स्वेट निकलता है। इफ यू कैन नॉट बियर दी सॉक्स, हैंड्स में भी ग्लव्स आप जाड़ों में पहनते हैं, आजकल गर्मियों में नहीं पहन सकते, और एक्सिला में यानी अंडर आर्म्स में, ऐसी जगहों पर स्वेट ज्यादा निकलता है बिकॉज ऑफ द मोर स्वेट ग्लैंड्स। सो you see these are the sudoriferous gland, these are the sweat glands. Now coming to the another structure, that is nails. Fingernails and toenails are hard keratin structures. ये जो नेल्स जो होते हैं, they are the hard keratin. Keratin is a type of protein जो हार्ड होती है। ये these are the keratin structures that protect the end of the fingers and toes. ये फिंगर और टोस में दोनों में होते हैं और इसके स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। The nail root, also called germinal matrix or nail bed. जो नेल का रूट होता है यहाँ पर, दिस इज द नेल बेड, ये जो पोर्शन है दिस इज द नेल बेड, जिसके ऊपर ये नेल प्लेट लगी हुई है। यू सी द स्ट्रक्चर माइन्यूटली, दिस इज कंप्लीट नेल बेड, दिस इज नेल प्लेट, ऊपर की तरफ जो आपको दिखता है नेल प्लेट है, एंड दिस इज द रूट जहाँ से नेल जुड़ा हुआ है। नेल रूट जहाँ से रूट है वहीं पर क्या है, नेल मैट्रिक्स, नेल की मैट्रिक्स है, और ये नेल बेड है। एंड देन हाइपोनाइकियम, ये जो नेल बेड और नेल के बीच का जो जगह है, दिस इज नोन एज हाइपोनाइकियम, HYPONYCHIUM, हाइपोनाइकियम। दिस इज द नेल बेड, एंड देन जहाँ से नेल बेड, ये नेल रूट होती है,
इसके ऊपर आप देखते थोड़ी सी स्किन चढ़ी होती है शुरुआत में, दैट इज द क्यूटिकल, एंड देयर इज प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड, एक हल्का सा फोल्ड होता है जिसके अंदर नेल की रूट चली गई होती है। तो ऐसे ही आपको इस स्ट्रक्चर में पूरा ये स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पर आपको केवल नेल प्लेट दिखेगी और ये ऊपर की क्यूटिकल हल्की सी दिखती है, एंड देन दिस इज द लैनुला, ल्यूनुला, दिस इज द ल्यूनुला, हल्का सा यहाँ पर कवरिंग सी आती है ऊपर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ nails. The nail root are so called germinal matrix or nail bed. नेल की रूट को हम जर्मिनल जहाँ से जर्मिनल, अगर यहाँ से नेल टूट जाता है तो दोबारा से नेल बन जाता है, दैट इज द जर्मिनल मैट्रिक्स होता है। बिगिन सेवरल मिलीमीटर्स इनटू द फिंगर्स, सेवरल मिलीमीटर बहुत थोड़ा सा अंदर जाता है, बहुत सेवरल मिलीमीटर्स into the finger and extend to the edge of the white, और बाहर यहाँ तक एज तक आता है। द क्रिसेंट शेप लेनुला, क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट माने हल्का सा, ही देखिए कैसा शेप है, हल्का सा अर्धचंद्राकार, क्रिसेंट शेप, ऐसे क्रिसेंट शेप्ड होता है ल्यूनुला। दिस इज वेयर द ग्रोथ आकर्स, यहीं से ग्रोथ, अगर ये नेल यहाँ से निकल जाएगा, इंजरी हो जाती है तो यहाँ से दूसरा नेल ग्रो करता है। अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर पर वीक। द अंडर सरफेस ऑफ नेल प्लेट और बॉडी ऑफ नेल हैज ग्रूव्स दैट हेल्प एंकर इट, और इसके अंडर सरफेस पे नेल प्लेट के क्या होती है, हल्की सी ग्रूव होती है जो इसके ऊपर एंकर करने में आसानी होती है। ग्रूव ना हो अगर तो एंकरिंग यानी उससे चिपकना मुश्किल हो जाएगा नेल बेड से। ओके, एवरीबॉडी हैज मेड द डायग्राम एंड डायग्राम इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, द नेल क्यूटिकल इज आल्सो कॉल्ड द इपोनाइकियम। जो नेल आगे जो है हाइपोनाइकियम था, और जो ये क्यूटिकल है इसको क्या बोलते हैं, इपोनाइकियम। इट फ्यूजेस विद द नेल प्लेट एंड द स्किन ऑफ द फिंगर, ये दोनों जगह फ्यूज करती है, इधर भी नेल प्लेट से भी फ्यूज करती है और इधर इसके यानी बेस पे भी स्किन के अंदर भी फ्यूज करती है। फ्यूजेस विद द नेल प्लेट एंड द स्किन ऑफ द फिंगर टुगेदर टू फॉर्म ए वाटर प्रूफ बैरियर, इससे वाटर प्रूफ बैरियर बन जाता है, इससे वाटर अंदर नहीं जाता। द हाइपोनाइकियम इज द अंडर द फ्री एज ऑफ द नेल, और हाइपोनाइकियम कहाँ पर होता है, ये इस साइड पर, हाइपोनाइकियम इस साइड पर है हाइपोनाइकियम, और ये क्या कहलाता है, एपिनाइकियम, एपिनाइकियम, और ये हाइपोनाइकियम अंडर सरफेस पर जहाँ पे फ्री एंड है नेल का वहां पर होता है। Hyponychium is under the free edge of the nail. It also creates a waterproof barrier. इससे waterproof barrier से क्या होता है, नेल बेड तक ये अंदर पानी नहीं जाता। Fusing with the skin of the finger to the under side of the nail plate. A last finger or toenail will regenerate. जो last हो जाते हैं, जैसे ये वाले last हो गए हैं, तो they will regenerate. Sometimes what may happen, ingrowing nails. Ingrowing nails are simply those that have curled down or around. Normally नहीं होता, आप कभी कभी देखते हैं आपका जो जैसे थंब जो टो होता है, बड़ा ग्रेट टो, इसी में ज़्यादातर ऐसी चीज़ दिखती है। नेल, ये नेल प्लेट जैसे सिंपल सी नेल प्लेट है, और ये नेल प्लेट क्या हो रही है, यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ ग्रो हो रही है, it is growing inside, it is growing inside, and sometimes it is inflamed and causes pain. Ingrowing nails are simply those that have curled down or around the growing into the skin, और जो around skin है उसमें grow करने लगता है। It may become swollen and inflamed, और इससे क्या होता है, swelling हो जाती है और inflammation हो जाता है, और अगर आप इसको ट्रिम नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये अंदर की तरफ ग्रो करने लगते हैं। एंड दिस ग्रोइंग मे कॉज स्वेलिंग एंड पेन हेयर।
So ingrowing nail is usually not a normal condition. Sometimes it happens when you are not trimming the toenails. So trimming of the toenails is very important. अगर आप trimming नहीं करेंगे तो sometimes what may happen, it may grow inside the skin and may cause swelling and inflammation. This is known as ingrown toenail. Now I'll talk about the burns. Very important point you should know, because any burn, किसी को भी burning हो जाए, that is a medico legal condition. That is a medico legal condition. क्योंकि normally कोई भी पर्सन अपने आप को अपने आप नहीं जलाना चाहता है. सम क्राइम में यूजुअली होता है, इसलिए ये एक मेडिको लीगल कंडीशन होती है. तो इस मेडिको लीगल कंडीशन को यूजुअली पुलिस रिपोर्ट होती है, और हॉस्पिटल में अगर पेशेंट एडमिट हो रहा है तो कॉज ऑफ डेथ कभी कभी हो जाता है. इसलिए एवरी बर्न इज ट्रीटेड एज मेडिको लीगल. अगर हॉस्पिटल में कोई बर्न केस आता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया हुआ है, तो हॉस्पिटल की ड्यूटी होती है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे. तो हम केवल यहाँ पर ये बात करेंगे जो हमारी स्किन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड पहले स्किन बर्न में सबसे पहले इफेक्ट होगी, सबसे आउटर ऑर्गन है और सबसे ज़्यादा वही इफेक्ट होता है. तो बर्न में भी आप 3 डिग्री, 3 डिग्री से बर्न हो सकते हैं. फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री बर्न. फर्स्ट डिग्री बर्न बिल्कुल सुपरफिशियल होंगे, जैसे आपने पढ़ा है 3 लेयर्स होती हैं. एपिडर्मिस, ओनली द एपिडर्मिस इज डैमेज विद रेडनेस एंड स्वेलिंग. अगर रेडनेस हो गई, हल्की सी स्वेलिंग आई, देन वी से इट फर्स्ट डिग्री बर्न. फर्स्ट डिग्री बर्न में केवल पहली लेयर, देयर आर 3 लेयर्स, एवरीबडी नोज नाउ, epidermis, dermis and hypodermis. So in first degree burn, only the epidermis is damaged. और epidermis कैसे डैमेज होती है, जिसमें रेडनेस और स्वेलिंग हो जाए केवल, बस. सेकेंड डिग्री बर्न थोड़ा उससे ज्यादा हो जाएगी. कौन सी जगह? एपिडर्मिस एंड अपर रीजन ऑफ डर्मिस इज इन्वॉल्व. अपर रीजन कौन सा था? अपर रीजन, एनीबडी? 2 एरिया थे उसमें. एक एरिया वो था जिससे आपकी ये इम्प्रेशंस बनते हैं, और दूसरा, एनीबडी इज रिमेम्बरिंग दैट? डर्मिस में अपर रीजन और लोअर रीजन? नोबडी हैज रिवाइज्ड इट. डर्मल लेयर, ये यहाँ पर, ये जो यहाँ से ये डर्मिस है, ये केवल एपिडर्मिस है. यहाँ से डर्मिस शुरू हो गई, तो डर्मिस में अपर वाली जो है, ये इस तरह से जो ये एरिया है, ये क्या है? पेपिलरी. एंड दूसरा क्या है? रेटिकुलर. पेपिलरी एंड रेटिकुलर. डर्मिस, ये देखिए, ये हाई डर्मिस है. ये पूरी 2 एरिया है इसमें. एक ये पेपिलरी डर्मिस दिखाई थी, एंड दिस इज द रेटिकुलर डर्मिस. ये देखिए, इट इज रिटन हियर रेटिकुलर डर्मिस, ये है. और ये पेपिलरी, पेपिलरी में पेपिला लाइक प्रोजेक्शंस, सॉरी, पेपिला लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं. ये पेपिला लाइक प्रोजेक्शंस, ये पेपिला लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं. तो प्रोजेक्शन होने की वजह से इसमें इम्प्रेशन बन जाते हैं, जो आपकी फिंगर और टो में इम्प्रेशंस होते हैं, थंब इम्प्रेशन, वो इसी के कारण होते हैं. तो ये इम्प्रेशंस के एरिया को हम कहते हैं पेपिलरी डर्मिस, और जो नीचे वाला है रेटिकुलर डर्मिस. तो पेपिलरी डर्मिस रिजेस वाला होता है, फिंगर एंड फुटप्रिंट्स इसी से बनते हैं. और रेटिकुलर इसके नीचे की लेयर है, जो फाइब्रस टिश्यू की होती है, और इसमें ब्लड वेसल्स सपोर्टेड होती हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह. इसमें ब्लड वेसल्स देखिए सपोर्टेड है. ओके,
सो सेकेंड डिग्री बर्न इन्वॉल्व्स एपिडर्मिस पूरी हो गई और अपर रीजन ऑफ डर्मिस यानी पेपिलरी पार्ट। देयर इज रेडनेस, रेडनेस पहले वाले में भी आई थी, स्वेलिंग भी आई थी, अब क्या बढ़ गया, ब्लिस्टर। जब आप देखते हो बर्न में छाला पड़ गया, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो गया, तो कहां तक इन्वॉल्वमेंट हो गया, सेकेंड डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न। ओके, नाउ थर्ड डिग्री बर्न्स, all the layers of skin burn, that is most severe condition, third degree burn, all the layers of skin, क्या क्या layers थी, all the layers of the skin are burned, it is most severe condition, स्किन ग्राफ्ट इज नेसेसरी टू रिपेयर। और जब हमें ये घाव भरना है तो घाव ऐसे नहीं भरेगा खाली ट्रीटमेंट से, यहाँ पे हमें स्किन को ग्राफ्ट करना पड़ेगा, कहीं से स्किन का पोर्शन ला के इसको जोड़ना पड़ेगा कि ग्राफ्ट तब वो ग्रो करेगा। इसमें स्किन लुक्स चेरी रेड एंड ब्लैक, स्किन कैसी दिखेगी, चेरी रेड दिखेगी, चेरी रेड बहुत ब्राइट रेड होती है और कभी कभी वो ब्लैक भी हो जाती है। तो आपको ब्लैक पॉलिश देखी ना, बूट पॉलिश, चेरी रेड, उस पर क्या लिखा होता है, चेरी रेड ब्लैक पॉलिश, तो वैसा बर्न हो जाएगा। तो तीन तरह के बर्न हो गए। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आया बर्न का? यस सर। यादव, Yes, sir. यादव है यहाँ पे, हु इज यादव? Lokendra Yes, Yadav. sir. Yes, sir. यू आर, आपको समझ में आया है? बताइए Yes, कितनी sir. तरह के बर्ड्स, बताइए कितनी तरह के बर्ड्स हैं? 3 तरह के सर। हाँ बताइए, तीनों बता जाइए। फर्स्ट डिग्री मतलब बर्न्स ओनली द एपिडर्मिस इज एपेंडेमिक, फर्स्ट डिग्री बर्न, हिंदी में समझा दीजिए, हिंदी में फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है? आपको सारी लेयर्स पढ़ चुके हैं ना, तो फर्स्ट डिग्री बर्न किसको कहते हैं बताइए, क्या हो गया? ये म्यूट कैसे हो जाता है स्पीकर फिर, क्या हुआ? सर भूल गए सर। क्या भूल गए? आपने नोट किया, नहीं नोट किया? सर नोट तो नहीं किया है। केवल बैठे, नोट नहीं करोगे याद कैसे होगा? यस सर। यस सर, इसमें भी यस सर, उसमें भी यस सर। एंड मुस्तकीम कौन है, कुछ? यस सर। हाँ, नाउ यू टेल मी, फर्स्ट डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न में सिर्फ एपिडर्मिस का जो एपिडर्मिस जो है डैमेज हो जाता है, उसमें रेडनेस और रेडनेस एंड स्वेलिंग हो जाती है। देन सर सेकेंड डिग्री में एपिडर्मिस एंड अपर रीजन जो होता है दोनों क्या बोलते हैं, अपर रीजन कौन, डर्मिस का डर्मिस। अपर रीजन कौन सा होता है? स्वेलिंग डर्मिस सर। का अपर, डर्मिस का अपर रीजन कौन सा होता है? सर डर्मिस का सर बनने पलट रहे, डर्मिस का अपर रीजन कौन सा होता है? अभी मैंने डायग्राम फिर से दिखाया था, दो एरिया बताए हैं। मैं बताऊं? डर्मिस, हाँ बताइए। सर पेपिलरी और कार्टियल। पेपिलरी और कार्टियल। कार्टियल कहाँ होता है? व्हाट इज कार्टियल? पेपिलरी एरिया होता है और रेटिकुलर एरिया, दो एरिया होते हैं। देख करके भी आप लोग सही नहीं बोलते हो। Who will tell? Yes. Anybody else? तीन तरह के, हाँ तीन लेवल के बर्न्स, हाँ बोलिए। पेपिलरी डर्मिस होता है, उसके बाद सर रेटिकुलम एंड पेपिलरी रेटिकुलर डर्मिस। हाँ, तो कहाँ तक बर्न हो गया?
कैपिलरी एरिया सर, तक बर्न हो गया। यस सर। अपर रीजन ऑफ डर्मिस इज इन्वॉल्व। और क्या क्या होगा? पहले रेडनेस रेडनेस, स्वेलिंग तो पहले में हो गई थी, अब सर, इसमें क्या पड़ गया? सर रेडनेस भी होगी, स्वेलिंग भी, और ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर। ब्लिस्टर क्या होते हैं? बाहर की तरफ उछले हुए होते हैं ना, उभरे हुए, बाहर की तरफ उछले हुए होते हैं ना सर। वो ब्लिस्टर। आपने देखे कभी? छाला पड़ा है जल? ये पानी इसके अंदर जो भर जाता हाँ हाँ, तो वो बाहर स्किन से ऊपर उठे हुए होते हैं ना, है। तो वो एरिया क्या मतलब बताते हैं आपको? मैंने बताया डर्मिस में पेपिलरी एरिया है। पेपिलरी एरिया कैसा होता है? मैंने अभी बताया पेपिलरी एरिया। पेपिलरी एरिया का मतलब जो वो पेपिला टाइप के प्रोजेक्शन दिखे थे ना एरिया में, यस सर। जब स्किन के अंदर है वो उसमें पानी भर गया और स्किन के बाहर आ गए यस सर। बर्न होने में, तो क्या हुआ? ब्लिस्टर बन गए। क्या बन गए? ब्लिस्टर्स, हाँ, तो सेकेंड डिग्री बर्न में क्या क्या हो गया? रेडनेस रेडनेस, स्वेलिंग एंड ब्लिस्टर्स। एंड ब्लिस्टर। तो जब भी कहीं छाला पड़ जाता है, जल गया और छाला पड़ गया, आप कहीं जैसे गर्म बर्तन में एकदम टच हो जाते हैं तो वहां पे रेडनेस स्वेलिंग हुई, तो वो फर्स्ट डिग्री बर्न है। यस सर। और उसके बाद रेडनेस स्वेलिंग तो है, वहां पे छाले भी पड़ गए बहुत सारे, तो ये कौन सा बर्न हो गया? सेकेंड डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री। और अगर इसके और अंदर चला गया, रेटिकुलर एरिया और हाइपोडर्मिस भी हो गई इन्वॉल्व, वो क्या तीनों लेयर हो गई, तो हम क्या कहेंगे? थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री मोस्ट सीवियर ऑल सर, द ये लेयर्स ज्यादा। ऑफ स्किन बर्न। ओके, यस, यस सर। इजी है रिमेम्बर करना है कि नहीं? बिल्कुल इजी है। यस फर्स्ट सर। डिग्री बर्न में पहली लेयर केवल इन्वॉल्व होती है और रेडनेस स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग होती है। सेकेंड डिग्री बर्न में, सेकेंड डिग्री बर्न में सेकेंड लेयर तक इन्वॉल्व हो गई और छाले भी पड़ गए, रेडनेस स्वेलिंग एंड ब्लिस्टर्स। ओके, और सर, थर्ड डिग्री मोस्ट थर्ड सीवियर डिग्री हो में भी गई सीवियर और तीनों लेयर्स बर्न। इन्वॉल्व हो गई, थर्ड डिग्री बर्न हो गई। तो अब आप बताइए, कोई भी पेशेंट आता है तो उसमें कौन सा बर्न ज्यादा सीरियस है? सर थर्ड डिग्री सर। थर्ड डिग्री बर्न। अच्छा, अब ये बात कैसे समझ में आए कि थर्ड डिग्री बर्न ज्यादा सीरियस है? मैं कहता हूं कि फर्स्ट डिग्री बर्न ज्यादा सीरियस है। इसका मतलब आप क्या समझोगे? फर्स्ट डिग्री बर्न ज्यादा सीरियस है देन मे बी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि थर्ड डिग्री सीरियस नहीं, सामने लिखा हुआ है मोस्ट सीवियर, मगर हम अगर ये कहें एक केस ऐसा आया जिसमें फर्स्ट डिग्री बर्न ज्यादा सीरियस था, तो आप उसका मतलब क्या समझोगे? सर वो हाँ हाँ, यस, प्लेस यू पे यू विल डिपेंड हैव करेगा टू सर। यू विल हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। हाँ, बताइए। फर्स्ट डिग्री अगर सर ज्यादा ज्यादा डेंजर है तो सर वो प्लेस पे डिपेंड करता है, मे बी। प्लेस पे नहीं डिपेंड करता है, खाली प्लेस पे भी नहीं डिपेंड करता, देयर इज समथिंग मोर देन दैट। अगर पूरी बॉडी की स्किन तो पूरे शरीर में है ना, जितना ज्यादा एरिया कवर हो जाए, सपोज करिए 50% फर्स्ट डिग्री बर्न है, 50% माने शरीर का आधा भाग, पूरा आधा भाग फर्स्ट डिग्री बर्न है, और थर्ड डिग्री बर्न केवल 1-2 इंच, एक फिंगर केवल इन्वॉल्व है हाथ की, थर्ड डिग्री बर्न, तो आप ज्यादा सीरियस किसको कहोगे फिर? फर्स्ट डिग्री सर। यानी ये फर्स्ट एरिया जो डिपेंड। सीरियसनेस ऑफ द बर्न विल डिपेंड ऑन द एरिया इन्वॉल्व, एरिया इन्वॉल्व। तो जब भी बर्न का केस हॉस्पिटल में आता है तो हमें एरिया के हिसाब से उसको लिखना पड़ता है कि कितना एरिया इन्वॉल्व है। तो ये बात तो आपको सबको समझ में आ गई होगी कि एरिया इन्वॉल्व हो जाए ज्यादा तो फर्स्ट डिग्री बर्न भी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, यानी उसमें भी लाइफ को डेंजर हो जाता है, बचेगा या नहीं बचेगा इस पे डिपेंड करता है। ओके,
तो वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? नाउ यू सी दैट पिक्चर, नाउ यू सी दैट पिक्चर। जो ये आपको दिखलाई दे रहा है सामने, फेस के सामने का एरिया क्या लिखा है? 4.5%। क्या लिखा हुआ है? 4.5। जो फेस के सामने, और फेस के पीछे यानी हेड नेक, हेड नेक में यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या बना हुआ है? ये एरिया बना हुआ है, यहाँ से लाइन बनी हुई है। पूरा sir. हेड का सामने का एरिया 4.5% और पीछे का एरिया 4.5, यानी 9%। हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा किस एरिया के हिसाब से। अगर फेस का सामने का एरिया पूरा जला है तो कितना जला है? 4.5%। आधा जला है तो कितना लगभग होगा? 2.25% या 2%। ठीक है। और आगे पीछे पूरा सर जला है तो 9%। बात समझ में आ गई? ऐसे ही यहाँ से गर्दन के पास से यहाँ पे हाथ ना जुड़े हों और यहाँ पर ये पैर ना जुड़े हों, तो ये बीच का ट्रंक है ना, पूरा क्या कहलाता है? ट्रंक। सामने का एरिया क्या है? बॉडी का ट्रंक है ना, और पीछे बैक है, तो ये 18% है, 18%। एंटीरियर ट्रंक 18%। ओके, तो आगे 18 है और पीछे बैक कितना है? 18। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर कितना हो गया? 36% हो गया। 36। ओके, एंटीरियर और पोस्टीरियर कितना हो गया एरिया? 30। अगर केवल 36। सामने सामने का पूरा एरिया जला है तो 18%। अब इसमें चेस्ट भी है, एब्डोमेन भी है। अगर केवल चेस्ट जला है तो क्या होगा? 9% हो जाएगा। एब्डोमेन और चेस्ट दोनों है तो क्या होगा? 18%। ऐसे ही बैक में चले जाओ, पीठ की तरफ, पीठ पूरी जली है तो क्या होगी? 18%। आधी जली है तो 9%। ठीक है। तो आपने ये पूरा एरिया कितना दिया? सामने 18 और बैक में 18, तो टोटल कितना हो गया? 36%। ओके। ऐसे ही अपर लिम्ब हो गया। अपर लिम्ब में सामने 4.5%, पीछे क्या हो गया? 4.5%, 9 हो गया। ओके। ऐसे ही इधर का 4.5, 9, 18%। तो अपर लिम्ब हो गया 18%। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अपर लिम्ब क्या हो गया? 18%। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हेड नेक क्या हो गया? 9%। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रंक हो गया 36%। और पेरिनियम एरिया, जहां पर लिम्ब्स और एब्डोमेन मिलता है, पेरिनियम है। वी हैव रेड अबाउट द पेरिनियम एरिया, दैट इज 1%। एंड देन लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब अपर लिम्ब से लंबी होती हैं। अगर सामने की तरफ 9% है, पीछे की तरफ 9, 18 हो गया। 9 सामने, पीछे 9, 18, तो 18 18 कितना हो गया? 36। तो आप ये 36 जोड़िए, 36 ये जोड़िए, 72, 18 जो है जोड़िए, उसमें क्या आया? 90 हो गया। 9 जोड़िए, 99 हो गया। और ये 1%, 100% है। तो पूरी बॉडी का एरिया मैंने 100%, यानी पूरी बॉडी में हमने जोड़ लिया। अब अगर ये पोर्शन में आप कैसे आप कैलकुलेट करोगे? ये पूरा 4.5% है। अगर आधा जला तो इसका आधा % कर दोगे। 2.25। दोनों साइड जला है तो दोनों साइड को जोड़ दोगे। अगर आधे से कम जला है तो इतना 1% खाली हुआ। इतना मिलाए तो 2% हो गया, इतना मिलाए 3% हो गया, इतना मिलाए 4.5 हो गया। तो हम एक रफली एरिया निकाल सकते हैं कि इतना एरिया बर्न है। सपोज 50% बर्न केवल सुपरफिशियल है, केवल सुपरफिशियल माने यानी फर्स्ट डिग्री बर्न है, और पूरा आपका 9%, ये 18%, सामने पीछे मुंह जल गया, पूरा मुंह, फेस और बैक जल गया, यानी कितना जल गया? 9%। और ये दोनों अपर लिम्ब जल गए, दोनों अपर, यानी 18%। और ये ट्रंक का सामने पीछे जल गया, तो कितना हो गया? 36 और 18, ये कितना हो गया? 36 और 18,
कितना हो गया 54 54 और 9%, 9% और जल गया 63%। अगर मान लीजिए इतना सब जल पोर्शन, केवल इतना पोर्शन बचा है, नीचे का पेरिनियम और ये दोनों लिम्ब बचे, तो 60 कितना बताया था 63% ना, 63 63%, हाँ 63% बर्न है। और थर्ड डिग्री बर्न में केवल इतना हाथ जला है, तो कौन सा ज्यादा सीरियस होगा? फर्स्ट डिग्री सर, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट डिग्री 63%। सीरियस हो गया। तो हमारे एरिया, कितना एरिया बर्न होता है उसके हिसाब से उसकी सीवियरिटी बदल जाती है, उसकी सीवियरिटी उसके हिसाब से बदल जाती है, कितना बर्न है। ओके, ये बात क्लियर हुई सबको? एनी डाउट टू एनीबडी? No, sir. Because the diagram is itself very clear and showing each and everything. केवल आप अगर बैक में इसको कर दो तो आप जो सामने लिखा है यही चीज आप पीछे लिख लो, तो वही चीज यहाँ पर वैसे लिखी गई है और यहाँ पे डबल करके दिखाई गई है। तो आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। सो परसेंटेज ऑफ बर्न डिपेंड्स, अगर ज्यादा है फर्स्ट डिग्री तो फर्स्ट डिग्री विल बिकम मोर डेंजरस। क्यों ऐसा डेंजरस हो जाएगा? देखिए, अगर ये 63%, इतना पोर्शन ऊपर का सारा जल जाता है, ऐसा अक्सर होता है, जैसे गांव में लेडीज हैं, खाना बनाते समय उनको फिट्स आ गए और वो चूल्हे पर ही औंधे मुंह गिर गई और ये पोर्शन पूरा का पूरा जल गया और केवल एपिडर्मिस ही पोर्शन जला है, तब तक देख लिया किसी ने, मगर इतना पोर्शन जल गया तो इट बिकम्स मोर डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। कभी कभी ऐसे पेशेंट नहीं बच पाते। तो ये कहें कि आप वो तो फर्स्ट डिग्री बर्न था, वो तो ठीक हो जाना चाहिए था, ठीक हो जाना चाहिए था, दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट टू पेशेंट, कितनी जल्दी उसको इमरजेंसी सर्विसेज मिल गई, कितनी बढ़िया ट्रीटमेंट मिला, दैट डिपेंड्स ऑन दैट। मगर वो फर्स्ट डिग्री बर्न काफी बड़े एरिया में था, और अगर एक पर्सन है किसका केवल इतना हाथ ही केवल जला है, दिस मच पोर्शन, तो हाथ कितने में आएगा? मान लीजिए हमने 4.5 का आधा यहाँ पूरा किया तो यहाँ तक 2, और इतना मान लीजिए 1%, तो बर्न कितना हुआ? 1% तो हुआ ना। तो 1% बर्न कंप्लीट बर्न हुआ। क्या करेंगे अगर ये कंप्लीट बर्न हो गया, हड्डियां सब जल गई हैं, थर्ड डिग्री बर्न हो गया, सब कुछ पूरा हाथ जल गया, ज्यादा हाथ को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, एम्पुटेशन कर दिया गया, एम्पुटेशन कर दिया, बाकी पोर्शन बच गया, तो ये पर्सन की लाइफ नहीं जाने वाली है। तो सीरियस कौन सा हुआ? फर्स्ट डिग्री बर्न भी सीरियस हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि थर्ड डिग्री बर्न सीरियस नहीं होता। थर्ड डिग्री बर्न अगर इतने एरिया में हो जाए या इससे कम एरिया में हो जाए, सपोज पूरा ये फेस जल जाए, 9% आगे पीछे पूरा जल जाए, थर्ड डिग्री बर्न, तो ये एरिया में क्या है आपके? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और सारे यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स हैं, आई भी है, ईयर भी है, नोज भी है, टंग भी है, सब खाने पी सब, मतलब जितने सेंस ऑर्गन्स हैं यहीं पे हैं। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना, इट विल बिकम मोर डेंजरस। तो दैट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट एज वेल एज साइज ऑफ इन्वॉल्वमेंट, उसके हिसाब से सीरियसनेस कहते हैं। सो दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। Now anything left, anything which is doubtful to you in integumentary system? Now anything you want to discuss today? I told you in class you bring some problem जो पहले आपने पढ़ रखा है, उसमें कौन सी प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रही है, वो प्रॉब्लम डिस्कस किया करिए। नाउ यस, एनीबॉडी? Yes, any problem in this topic, integumentary system? Because this was the last system. I have covered all the 11 systems of the body. You know, I have covered all the 11 systems of the body.
Now we will cover the about cell. Cell वाला टॉपिक अभी आपका रह गया. Okay. In detail we have Yes, sir. read in short. Cell को डिटेल में पढ़ना रह गया. So we'll start from the next turn about the cell. But any problem in this topic, you can ask any question in integumentary system, or which system you want to revise again. जो सिस्टम में आपको सबको प्रॉब्लम आ रही हो, बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट टर्न वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक आल्सो अलोंग विद रिवीजन ऑफ सम टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो. जो मास में आप सब बोलोगे इकट्ठे, वो टॉपिक पहले रिवाइज करेंगे. यस, एनीबॉडी? वही बोले जो रोज पढ़ाई कर रहे हो, जो आप लोग पढ़ रहे हैं. अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो आप केवल मत बोलना. कम से कम जो रिवीजन कर रहे हैं, जो आप अपने जितना हमने टॉपिक सारे, बिकॉज वी हैव कवर्ड ऑल द 11 सिस्टम, जिस आप जो पढ़ाई करके रिवीजन कर रहे हैं उसमें कौन से टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हो, ओनली टेल दैट टॉपिक. यस सर. हाँ. यस सर, हाँ. यूरिन फॉर्मेशन जो था सर, वो एक बार जिसमें वुमेन्स कैप्सूल और कौन से मिनरल्स उसमें ऐड हो रहे थे सर, तो वो एक बार नहीं, तो हम सिस्टम से शुरू करें या पूरा केवल यूरिन फॉर्मेशन आपको पढ़ना है? सर सिर्फ यूरिन फॉर्मेशन. सिस्टम तो समझ में आ गया सर, बस यूरिन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है. ओके ओके, नेक्स्ट टाइम वी विल टेक इट अप. यूरिन फॉर्मेशन एक शॉर्ट में आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया उसमें? सर जो बिकॉज चेंज देयर हो रहा था. जो यूरिनरी सिस्टम है, किडनी डज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. जो ब्लड इम्प्योरिटीज के साथ जाता है किडनी में, उसमें फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन यूनिट्स को कहते हैं ग्लोमरुलस, सॉरी Yes, sir. नेफ्रॉन. नेफ्रॉन्स. कंप्लीट यूनिट का नाम है नेफ्रॉन. नेफ्रॉन में फर्स्ट पार्ट इज द ग्लोमरुलस कैप्सूल. ग्लोमरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल. जो वाइडर पार्ट होता है नेफ्रॉन का, वो फिल्ट्रेशन का काम करता है, दैट इज नोन एज बोमेंस कैप्सूल. और उसमें जो ब्लड की कैपिलरीज हैं, एफरेंट और इफरेंट, एफरेंट जो जाती हैं ब्लड को लेकर के, इफरेंट जो प्योर ब्लड को लेके वो आती हैं. दिस कलेक्शन ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट वेसल इज नोन एज ग्लोमरुलस. और ये ग्लोमरुलस एक कप शेप बोमेंस कैप्सूल में रहता है, और वहीं पर फिल्ट्रेशन होकर के बोमेंस कैप्सूल से ब्लड जाता है नेफ्रॉन के दूसरे पार्टों में. दूसरे पार्ट क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, then loop of Henle, and then distal convoluted tubule, and then collecting duct. They are connected into the collecting duct, and then this collecting duct opens into the ureter. Yes. So this is the morphology. I told you in very simple way, when blood is filtered, फिल्ट्रेशन में जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, मेजर पार्टिकल, जैसे ब्लड में प्रोटीन्स हैं, दे आर नॉट फिल्टर्ड. वो ग्लोमरुलस में ऊपर ही रह जाएंगी, वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर नहीं जाएंगे, फिल्टर नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आर बिगर पार्ट. और जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो बॉडी के लिए यूजफुल हैं और चाहे बॉडी के लिए वेस्ट हैं, दोनों उसमें फिल्टर आउट हो जाते हैं. जैसे आप चाय बनाने में छन्नी लगाते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं ना, तो फिल्ट्रेशन करने में आप क्या देखते हो? जो गड़बड़ पार्टिकल्स हैं, जो बड़े पार्टिकल के, चाय की पत्ती या जो आपने उसमें अदरक
या जो आपने हल्दी उसमें डाली वो छन्नी के ऊपर रह जाती है, बिकॉज दे आर द बिगर पार्टिकल। और जो बिगर पार्टिकल नहीं है, जो सोल्यूशन में सॉल्व हो गए, जो सोल्यूशन में बन गए, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिल गया, सोल्यूशन के रूप में है, वो दूध, पानी, चाय, दूध, पानी, ये सब चीजें, शुगर, ये सब जो सोल्यूशन में बन गए, वो सब नीचे चला जाता है, वो फिल्टर हो जाता है। यही तो होता है ना छन्नी में। यस ऐसे सर। ही हमारे, ऐसे ही नेफ्रॉन में जो बिगर पार्टिकल हैं, दे आर दी प्रोटीन्स। ब्लड में जो प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, दे आर नॉट फिल्टर्ड। वो कब फिल्टर होंगी? जब ये किडनी में बीमारी होगी, ग्लोमेरुलस में कुछ बीमारी आ जाती है, नेफ्राइटिस हो जाती है, नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन होता है, ओनली देन दे फिल्टर। प्रोटीन आने लगती है यूरिन में, अदरवाइज प्रोटीन कभी भी फिल्टर नहीं होगी। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होगा? वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, जो हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल बना है, जो ब्लड के थ्रू आया था फिल्टर होने, वो भी फिल्टर हो गया, नीचे आ गया। किस में आ गया? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। क्लियर? और जो अच्छी चीजें थी, अच्छी चीजों में क्या था? शुगर, शुगर भी बॉडी के लिए चाहिए ना, ग्लूकोज, वो भी यस फिल्टर हो गया। उसमें सोडियम भी था, वो भी फिल्टर हो गया। पोटेशियम था, वो भी फिल्टर हो गया। तो जो अच्छी चीजें थी वो भी फिल्टर हो गई, और जो बैड वेस्ट प्रोडक्ट थे वो भी फिल्टर हो गए। केवल कौन चीज फिल्टर नहीं हुई थी? जिनके पार्टिकल्स बड़े थे, और वो क्या थे? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, वो नहीं फिल्टर हुए। और जो सेल्स थी वो नहीं फिल्टर हुई, सेल्स भी सारी की सारी वापस हो गई, आरबीसी भी वापस हो गई, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये भी नहीं फिल्टर हुए, क्योंकि ब्लड में तो सभी कुछ आया ना। तो वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर हुए, प्लस जो कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स थे, ग्लूकोज था, और यानी शुगर, और पोटेशियम, जो आयंस हुए थे, ये भी अच्छे हमारे बॉडी के लिए चाहिए ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब चाहिए ना बॉडी की एक्टिविटी के लिए, वो भी फिल्टर हो गया। तो अब जब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएंगे, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो अच्छी चीजें थी वो दोबारा से एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। यानी जैसे ग्लूकोज है, शुगर है, सोडियम है, ये क्या चीजें हैं? ये दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाएंगी और ब्लड में चली जाएंगी। जो ऊपर से इफरेंट वेसल नहीं ले जा पाई थी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास जो आर्टरीज, वेन्स हैं, वो उसको वापस ले लेंगी। इसको हम क्या कहेंगे? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ गुड आर्टिकल्स, गुड आइटम्स जो हैं उनको रीएब्जॉर्प्शन कर लिया गया, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ गुड आर्टिकल्स। और जो गुड आर्टिकल्स नहीं थे वो उसी वाटर में मिले हुए कहाँ चले आए? लूप ऑफ हेलने में। ओके, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो अच्छे आर्टिकल्स थे वो नहीं एब्जॉर्ब हुए, जो बच गए वो कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे? लूप ऑफ हेलने में वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इस तरह जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आते आते क्या होगा? केवल उसमें क्या रह जाएगा? जो अच्छे आर्टिकल्स थे वो सारे के सारे पहले से ही एब्जॉर्ब हो गए, रीएब्जॉर्ब हो गए। अब क्या रह गया? वेस्ट मटेरियल और वाटर, दो ही चीजें रह जाएंगी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वेस्ट मटेरियल में वाटर थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो क्या होगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा यहाँ पे सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होगा? यूरिन का जो सोल्यूशन बना था वो यहाँ पर कंसंट्रेटेड, हाइपरटोनिक हो जाएगा। और उसके बाद ये सोल्यूशन जो यूरिन बन गया, वेस्ट मटेरियल प्लस वाटर, वेस्ट मटेरियल, गुड मटेरियल नहीं है, गुड मटेरियल तो रीअब्सॉर्ब हो गया, वेस्ट मटेरियल प्लस वाटर जो बचा, ये यहाँ से एब्जॉर्ब हो करके, ये यहाँ से कहाँ जाएगा? कलेक्टिंग ट्यूब, कलेक्टिंग डक्ट में। जितने नेफ्रॉन होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट उतनी नहीं होती, नेफ्रॉन से कम होती हैं। तो कई एक नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? कई एक नेफ्रॉन का कनेक्शन एक कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट पर
एक्शन होता है एक हार्मोन का जिसका नाम है एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन का फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। हार्मोन। ये कहाँ से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी से। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब इस हिसाब से हमें यूरिन में वाटर जाने देना है। अगर हम ज्यादा यूरिन निकालनी है तो ज्यादा वाटर जाने देना है, तो एडीएच का सिक्रेशन नहीं होगा। कम वाटर जाने देना है तो एडीएच का सिक्रेशन हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? वाटर कम जाएगा। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि डाययूरेसिस कितनी करानी, कितना अमाउंट ऑफ यूरिन निकालना है। गर्मी होती है तो कम अमाउंट ऑफ यूरिन निकालना होता है, तो एडीएच के कारण वो कम अमाउंट जाता है। और क्यों ऐसा होता है गर्मियों में कम यूरिन होती है? क्योंकि परस्पिरेशन से भी लॉस होता है। अभी हमने पढ़ा स्किन से 1/2 लीटर तक पूरा पानी आपका इवेपरेट हो जाता है दिन भर में, तो स्किन से भी लॉस होता है, कुछ अमाउंट फीसिस से भी लॉस होता है। तो उसके अमाउंट्स के हिसाब से यूरिन बनती है। So this is the complete in nutshell formation of urine. Any point which is still not clear? Any point which is still not clear? नो सर। Hello? Okay. So हमें कौन सा सिस्टम? एक तो सिस्टम we will start about the cell and its organelle. पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद एक रिवीजन स्टार्ट करना है साथ साथ में। तो आप कौन सा चैप्टर पढ़ के आना चाहते हो जो कल आप पढ़ के आओ? अभी लास्ट में ही तो किया है, जो पहले शुरू में पढ़े हैं ना वहां से स्टार्ट करिए, रिवीजन वहां से स्टार्ट करिए जो मैंने शुरुआत से पढ़े हैं। हाँ, सर सेंट्रल अभी नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तो हम रिवीजन शुरू करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स का। तो आप अपने साथ कॉपी बुक रखिएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें लिखा हो, जिसमें आपको जवाब भी दे सकें। ये नहीं है कि मैं पूरा पूरा पढ़ाऊं, मैं आपसे उसके बारे में पूछूंगा तो आपसे क्वेश्चन होंगे एंड यू शुड आंसर आल्सो। तो सब लोग आज सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिवाइज करेंगे, देन वी विल डू द रिवीजन कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से वी विल स्टार्ट रिवीजन। तो जो 2 आवर्स की पढ़ाई करनी है, पहले आवर में न्यू चैप्टर एंड सेकेंड आवर में क्वेश्चन आंसर्स एंड योर रिवीजन ऑफ द चैप्टर। ओके, यस सर। नाउ गिव योर अटेंडेंस टू द ऑफिस, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। और ये थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।